Okay. Okay, students. So in today's class, I am giving you more methods to solve vectors. Different methods of solving addition methods. Because finding our resultant vector, we have many MCQs in our past papers. So how can you solve these MCQs in these sufficient lesser time? So today's class is very important for your past paper practice. So you have to follow all the instructions carefully. I'm going to give you 3 different methods rather than parallelogram method. That was a difficult one. Means you for this you have to set the skills as I have told you in tomorrow's class, and hope that method is almost clear to all of you. So in today's method, I'm giving you more methods to solve, more and easiest methods to solve resultant vector. Okay. Yes, Hiba, any problem? Okay, you're raising hand. Okay, so today is 27/8 Friday. Our lesson aims to know about different methods of addition vectors. So we are going to know about different methods of addition, and you will be able to know about how to solve MCQs in lesser time. Yes. मिस हमें कॉपी में लिखना है. Yes, definitely you have to copy each and everything. You have to give the heading addition vector, different methods of solving addition methods. And you have to do each and everything in your copy right now. I will share this slide with you if something remaining. Okay. इस तरह के MCQs आपके पेपर में आते हैं and you have a limited time to solve this. अगर ये आप parallelogram method से solve करने लग गए तो आपको उसी क्वेश्चन एक MCQ solve करने के लिए 10 minutes लग जाएंगे. But we don't have to spend 10 minutes to solve this. So we want something more easier and our answer must be more accurate. So how can we do this? Let's see. For example, I'm giving you the 2 examples here and I'm going to explain this. So part number 1, 3 Newton and 5 Newton, 2 vectors I have. One vector is a 3 Newton vector and other vector is 5 Newton vector, as you can see on screen. Okay. So how can I solve this vector to get a resultant vector? Actually, in this question, they are asking that which one is not the resultant vector, right? You can write the question as well. I don't write the question here because I have a limited space. So you can write a question here, which is not possible answer for these 2 forces. These are 2 forces, vector forces, 3 Newton and 5 Newton. So these are the options. 4 options are given to you. You have to answer correctly, which is not possible answer for these 2 forces, right? If we have 2 forces, so how can we do it? Let's suppose if both the forces are acting in the same direction. You can see the 2 arrows on the screen. One is 3 Newton arrow, another is 5 Newton arrow, and both are acting in the same direction. How can we do? We have to add up both, right? We have to add up both. For example, if I add up both of the forces, 3 plus 5, I will get 8 Newton, right? For the other side, if my both forces are opposite, so what is the other option for me? If 3 Newton is moving eastward and the 5 Newton is moving towards westward in this direction. Now you can see both forces are opposite now. Now what can I do? I have to minus both the forces. Now I don't have to add both of forces. Now I have to minus both. 5 minus 3. I will get 2 here.
right? 2 Newton. So my resultant vector is in between 8 and 2. I don't know what is the resultant, and the resultant is not given to you. I'm giving you the hint to how to solve this, right? Your answer resultant vector is in between 2 and 8. Means आपका जो resultant होगा वो इन दोनों forces के बीच में कहीं lie करता होगा. 2 से 8 के बीच में lie करता होगा आपका resultant vector, right? लेकिन आपसे पूछा ये जा रहा है कि which is not the possible answer, means which is not the possible resultant vector. अब आप देख सकते हो option A 0.5 Newton, option B 3.5 Newton, then option C 4.0 Newtons. Sorry, यहाँ पे थोड़ी सी mistake है. Option D 5 Newton. So what do you think? Which one is the right one? Which is not the possible answer for the resultant vector? 5 को देखिए, नंबर डी को 2 और 8 के बीच में लाई कर रहा है. यस, कर रहा है ना? यस मैम. इसी तरह आपका 4 भी लाई कर रहा है और 3.5 भी 2 और 8 के बीच में लाई कर रहा है. मींस कि इनमें से कोई भी रिजल्टेंट हो सकता है, पर हमें क्या निकालना है? जो रिजल्टेंट नहीं है. So which one is the right one? Quickly give me the answer. Which one is the right one? Yes, A is the right one. Okay. Similarly, start doing the part number 2 right now and give me your answer in comment box right now. मिस हम रजिस्टर में क्वेश्चन क्या आप क्वेश्चन इस पे ये लिखोगे, आगे लिखोगे which is not the possible answer for these two vector forces. Okay, यहाँ पर टॉप पर क्वेश्चन लिख लें अपनी कॉपी में, which is not the possible answer for these two forces. Okay, in this question we have two vectors and you have to find out which is not the resultant vector. You don't have to find out the resultant vector, you have to find out which is not the resultant vector. और मैंने आपको रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने का एक सिंपलेस्ट वे यहाँ पे बता दिया कि अगर इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास पेपर में आते हैं तो आप उसको लेसर टाइम पीरियड में कैसे सोल्व. ठीक है, आई एम गिविंग यू, आई एम एक्सप्लेनिंग यू 3 मेथड्स टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. Do solve part number 2 and give me your answer in comment box quickly, all of you. We have a lesser time today and I have to cover all of this, so give me your answer. Be quick. मिस MCQ स्पीड करते प्लीज. Sorry. Any problem? Yes, Hiba, you're right. मिस फर्स्ट वाले MCQ का रिपीट करते हैं. दोबारा समझा दूं मैं आपको. Okay, let's see the part number 1. 3 Newton and 5 Newton are actually two vector forces. Okay, 3 Newton and 5 Newton are two vector forces. I told you if I want to find out vector, resultant vector, अगर ये दोनों फोर्सेस हमें नहीं पता कि ये दोनों फोर्सेस ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, हमें खुद से अभी सपोज करना है कि सपोज इफ दीज टू वेक्टर्स आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, अगर दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, इस तरह से अगर दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है तो फिर ये क्या होंगे? ये होंगे ऐड. ये क्या होंगे? ये दोनों होंगे ऐड. ठीक है, जो मैंने यहाँ पर किया है, जो मैंने इनको ऐड यहाँ किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं मैंने इनको यहाँ पर ऐड किया. 3 + 5 मेरे पास 8 न्यूटन आ गया. ठीक है, लेकिन अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, ये सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो हाउ कैन वी डू इट? आई हैव टू माइनस इट. तो मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, तो मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पर किया है.
जो मैंने इसको यहाँ पर माइनस किया हुआ है, आप देख सकते हो मैंने इधर इसको माइनस किया है, इस जगह पर ये माइनस होगा, ठीक है। अगर ये कहते हैं कि आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है तो आपको इन दोनों वैल्यूज के मींस 2 और 8 न्यूटन के बीच की वैल्यू रिजल्टेंट वैल्यू होगी, आपकी रिजल्टेंट वेक्टर होगा। लेकिन इन्होंने तो कहा है कि विच इज नॉट द पॉसिबल आंसर फॉर दीज टू फोर्सेस, मींस हमें रिजल्टेंट वेक्टर नहीं निकालना, जो रिजल्टेंट नहीं है हमें वो निकालना। तो हम कैसे निकालेंगे? जो भी इसकी वैल्यू इसके बीच में लाई नहीं कर रही वो होगा इसका आंसर। 3.5 भी लाई कर रहा है, 4 भी लाई कर रहा है, 5 भी लाई कर रहा है, मींस फ्रॉम दिस maybe 1 is the resultant, but we have to find out which is not the resultant vector. So 0.5 is not the resultant vector. Similarly, you have to do the part number 2 right now. Most of you give me the right answer. Yes, Parva, I have repeated this question again. If you have any confusion, you can ask me right now. बस समझ नहीं आया मुझे, दोबारा से समझा दें। ओके अबान, अबान देखो इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, नंबर 1 इज 3 न्यूटन एंड नंबर 2 इज 5 न्यूटन। 2 वेक्टर्स है, आपको पता है कि वेक्टर क्या होते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ये एक एरो वेक्टर फोर्स शो कर रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, जस्ट सपोज इफ आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, अगर मैं बॉल पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, एक हाथ से, और फिर दूसरे हाथ से भी फोर्स अप्लाई करने लग जाती हूँ एक ही बॉल पर सेम डायरेक्शन में, तो मैं क्या करूंगी? मैं ऐड करूंगी, मैं क्या करूंगी? मैं फोर्सेस को ऐड करूंगी। इस बॉल पर मैंने सेम डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई की, डिफरेंट मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड आपके सामने है, एक का मैग्नीट्यूड 3 है, एक का मैग्नीट्यूड 5 है। एक हाथ से मैं जोर से फोर्स लगा रही हूँ और एक हाथ से मैं लेसर फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, और बॉल पे लगा रही हूँ सेम डायरेक्शन में। ओके, तो मैं क्या करूंगी? दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो मुझे निकालना है मैं उसको एड अप करके निकालूंगी बाय दिस वे, राइट। लेकिन अगर क्या होता है कि मैं एक हैंड से अपने फोर्स लगा रही हूँ बॉल पर और दूसरे हैंड से मुझे कोई पीछे से पुल कर रहा है, जैसे मैं इधर फोर्स लगा रही हूँ, ये सपोज करें कि 5 न्यूटन के फोर्स में बॉल पे एक्सर्ट कर रही हूँ, लेकिन पीछे से मुझे कोई पुल करने लग जाता है इस डायरेक्शन में, तो मेरा अब फोर्स वो इम्पैक्ट नहीं देगी बॉल पर जो पहले दे रही थी, तो अब रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा ना। तो मैं क्या करूंगी? माइनस कर दूंगी 5 माइनस 3, तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा अब वो होगा 2 न्यूटन का। आप देख सकते हो कि 5 न्यूटन का फर्क आ गया बीच में, राइट। तो मेरा इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर लाई करता है 2 और 8 के बीच में, ओके, 2 और 8 के बीच में, यस पर गुड, 2 और 8 के बीच में लाई करते हैं। लेकिन मुझसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच इज नॉट द पॉसिबल आंसर, नॉट, आपसे पॉसिबल आंसर नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है नॉट द पॉसिबल आंसर, तो आपको वो देना है जो इनके बीच में लाई नहीं करता। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 2 इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। गजम्फर ने मुझे आंसर दे दिया है। गजम्फर यू आर राइट। आप डायग्राम बताएंगी कैसे हुई है ये मैंने आपको अबान मैंने आपको डायग्राम से शो किया है कि मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, अगर ये सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो पॉजिटिव है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो माइनस करोगे। जी, these are 2 vectors only, okay? इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस किए हैं कि एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे आप, राइट? क्या पता कि मैं पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन दे दूं। पार्ट नंबर 2 का मुझे जल्दी से आंसर दें। This means that the data is ये स्टेटमेंट आपके पास ना 0.5 मार्क्स का 5 मार्क्स
Good, Farwa. Farwa, you're right. So, 2 Newton for what? पर 2 तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है. 20. I think you are saying 20. देखो अगर मैं 30 न्यूटन और 50 न्यूटन को ऐड करती हूँ, अगर ये सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा आंसर? 80. 30 plus 50 is equals to 80. और इन द सेम वे अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है तो क्या होंगी? 50 minus 30 and I will get 20 then. 20 न्यूटन. तो मेरा जो रिजल्टेंट है वो 20 और 80 के बीच में लाई कर रहा है. Am I right? मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है. तो मुझे क्या निकालना है? वो वैल्यू निकालनी है जो कि इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रही. अब पार्ट डी को देखें. यू हैव 60 न्यूटन. सिमिलरली लाई कर रहा है 20 और 80 के बीच में. सिमिलरली पार्ट नंबर सी 30 न्यूटन ये भी लाई कर रहा है. पार्ट नंबर बी 50 न्यूटन ये भी लाई कर रहा है. दैट मींस 30 भी लाई कर रहा है. 20 और 80 के बीच में 10 लाई नहीं कर रहा. सो 10 is our possible answer. Okay, so 10 is the right answer. Clear to all of you? ये वाला मेथड क्लियर है? This method is not difficult. Okay. Okay. Now let's move towards other second method. जो कि कल हमने पैरेललोग्राम मेथड किया था, जिसमें that was a difficult and lengthy method, जो कि हम ज्यादातर थ्योरी पेपर के अंदर यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए. ओके. उसका अल्टरनेटिव मेथड मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करूंगी जिससे आप अपना रिजल्टेंट आंसर चेक भी कर सकते हो. सो यू कैन चेक योर आंसर बाय पाइथागोरस थ्योरम. You may be well aware by this formula, this method, this theorem in your math. Maybe you have done in the mathematics as well. Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem? A is equals to root. That is root b squared plus c squared. So this is your formula to finding out resultant vector. Okay. So this formula we are using to finding out our resultant vector. Keep in your mind, this is Pythagoras theorem. Our second method we are using is by Pythagoras theorem. Now look question number 1. Look at the question number 1 in front of you. You know that this part is the tail of vector and this part is the head of the vector. Am I right? Okay. So the first vector is of 9 Newton. पहला वेक्टर जो आपके पास गिवन है वो 9 न्यूटन का है. और जो सेकंड वेक्टर आपके पास गिवन है दैट इज ऑफ 12 न्यूटन. राइट? ओके. कीप वन थिंग इन माइंड. आप इन दोनों के टेल्स ज्वाइन करोगे. या आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इसी तरह का क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आता है, आपसे पूछा जाता है. राइट? आपने क्या करना है, इसमें क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में टेल टू टेल ज्वाइन होती है, जैसे हमने पैरेललोग्राम में किया था, टेल टू टेल ज्वाइन की थी. और वन थिंग मोर इम्पोर्टेंट कि इनके बीच में जो एंगल होता है वो 90 का एंगल होता है. राइट? इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 का एंगल बन रहा है. ठीक है? इन दोनों के बीच में 90 का एंगल बन रहा है. दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ही ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे, वरना नहीं करेंगे. अगर कोई और एंगल बन रहा होगा तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते. अगर मेरे पास इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर सकती हूँ बहुत इजीली. Okay, so my 9 Newton is actually B. 9 Newton जो है वो B है. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 9. 9 का क्या? स्क्वायर. ठीक है? 9 का है स्क्वायर. Similarly, I have plus sign and C मेरे पास जो है वो है 12. 12 का स्क्वायर.
ठीक है, 12 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करें, इनका रूट लें और मुझे आंसर बताइए क्या आ रहा है। जल्दी से मुझे इसका आंसर दें, क्या आ रहा है। आई एम वेटिंग। मुझे बताइए कि आपका ए इज द रिजल्टेंट, उसका आंसर क्या आ रहा है। जो रिजल्टेंट बनेगा ना आपका, वो कुछ इस तरह से बनेगा। यू नो वेरी वेल कि रिजल्टेंट कैसे बनता है। आप इसको यहाँ से ज्वाइन करोगे और यहाँ पे मिस लेके ए जाओगे। ये आपका ए है, रिजल्टेंट है। ये है आपका ए, राइट। अब ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो अब ये फॉर्मूला यूज करके आराम से अपना रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हो। निकाल के मुझे जल्दी से आंसर दें क्विकली। आंसर क्या आ रहा है मुझे बताइए। आई थिंक इट विल बी रूट 225 225 225 का रूट होगा क्या आएगा। यस एग्जैक्टली, यू आर राइट। So 25 is the resultant of these two vectors. 25 is the resultant of these two vectors. What are the two factors here? 9 Newton and 12 Newton. ठीक है, कल हिबा आपने क्वेश्चन किया था। हिबा कल आपने क्वेश्चन किया था, क्या इन दोनों का सम रिजल्टेंट के बराबर होता है। नो, अब आप देख सकते हो कि रिजल्टेंट हमेशा सम के बराबर नहीं होता। इन दोनों के सम के बराबर नहीं आते। ठीक है, अब हम सिमिलरली, समझ ही नहीं आया ये तो। समझ नहीं आया। ये देखिए, आपके पास जो एमसीक्यूज आएगा ना, वो कुछ इस तरह से होगा। जो मैंने रेड से शो किया, रेड से जो मैंने शो किया हुआ है, इस तरह का आपके पास एमसीक्यूज आएगा। ठीक है, आपको ये येलो लाइन फाइंड आउट करनी है। ए, ये येलो लाइन आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, रिजल्टेंट ए क्या है, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। लास्ट क्लास में हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके नहीं किया था, हमने पैरेललोग्राम मेथड यूज किया था। दैट वाज डिफिकल्ट वन एंड पैरेललोग्राम मेथड से किया था ना। तो एमसीक्यूज के लिए आपके पास इतना टाइम तो नहीं होता ना। यू हैव ओनली 45, आपके 40 एमसीक्यूज होते हैं, उसके पास आपके पास 1 आवर होता है। आप उसको पैरेललोग्राम मेथड से सॉल्व करोगे तो इट विल टेक मोर टाइम। तो आपको इजीएस्ट मेथड लेना है सॉल्व करने के लिए, और आपको एक्यूरेट आंसर भी चाहिए। तो इसलिए हमने पाइथागोरस थ्योरम से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पाइथागोरस थ्योरम से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जबकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपके लिए इजीएस्ट वे है कि आप वो डायग्राम बनाओ, इतना टाइम एक्सपेंड करो, आप इस फॉर्मूला को लगाओ और इस क्वेश्चन को साइड पे करें। राइट, ये फॉर्मूला यूज करो एंड इट विल वेरी इजी फॉर यू। ओके, सिंपल ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला।